So hey everyone, I am back with the Adventures of Tom Sawyer chapter 3. So let's begin with the jet speed. Okay, so before starting, I would love to tell you today's quote, and it is: no matter how many mistakes you make or how slow your progress is, you are still way ahead of everyone who isn't trying. So keep trying and success will definitely kiss your feet. Okay. So with this, we would start with the chapter, and I've turned off my video so as to avoid any distractions and save space on the screen as well. So the target for today is chapter 3, which is Monday morning. So let's begin. And before that, I would love to share my email for those who are demanding the other lectures of Robin Hood and his merry men. So for this, you have to mail me on my email, which is as follows: Anya Bijlani 0000246748, pardon for poor handwriting, @gmail.com. Okay, I hope you got that, everyone. So with this, we begin with the lecture. So we are here. We are going to start Monday morning, the third chapter from the story The Tom Sawyer. Okay, The Adventures of Tom Sawyer. Ready everyone, with your books, with your notebooks, with your pens, everything? Okay, so now what I have done is I have clicked the photos of the book, I have clicked the pics of the books, and I have added it onto here so as to save time. Okay, because when I used to type type each and every word of your book, of your chapter into this slide, it would take much of my time. It would take much of my time and energy, so that I couldn't upload it, I couldn't upload it very fast. ठीक है, तो मैं इतना जल्दी अपलोड इसलिए नहीं कर पा रही थी वीडियोस, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि मैं टाइपिंग कर रही थी, मैं डिक्टेशन यूज़ कर रही थी, और मुझे पूरा का पूरा जो बुक है, आपका जो चैप्टर है, वो पूरा का पूरा इन स्लाइड्स पे डालना पड़ रहा था, विच वुड ऑब्वियसली टेक टाइम. एंड सिंस यू नीडेड इट क्वाइट अर्ली because of your exams, I found out this method. Okay, my mother suggested this method to me. So guys, this is page number 18. I will mention the page number as well. This is page number 18 of your book. If you have your book, please open it. Okay, should we start now? Okay. On Monday morning, just what I will do is just now page number 18 is visible. ठीक है ना, पेज नंबर 18 सबका खुल गया. आई थिंक अब कोई इशू नहीं है किसी को. ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं so that it's clearly visible on your screen as well. ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सबको? ठीक है ना? Let's start then. On Monday morning, Tom was miserable. Miserable मतलब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी. He was unhappy. He was not happy, unhappy. ठीक है, I hope it's visible. Is it? Or I should use any other color? I will probably use this. Unhappy. ठीक. Now let me erase this first. Clear everyone? So Tom hated Mondays. Why did Tom hate Mondays? Because they meant the beginning of a big, boring week. Mondays are the starting days of the week. The big, boring week for Tom. ठीक है? So he hated Mondays.
Like we all love Sundays, or some of us who are wiser will love Saturdays because the next day is Sunday. ठीक है? So some of us will love Saturdays more, some of us will love Sundays more, but Tom hated Mondays like most of us. ठीक है? Most of us lazy people. He lay thinking in the bed. बेड पर वो लेटा लेटा क्या सोच रहा था? He wished he was sick. वो सोच रहा था क्यों ना यार मैं बीमार पड़ जाता, क्यों ना मैं बीमार पड़ जाता. समझ आ रहा है नहीं सबको? Suddenly he discovered something. He came to know something. One of his upper teeth was loose. उसका जो एक ऊपर का दांत था, that was loose, गिरने वाला था. He was about to groan. Cry loudly. Groan means cry loudly. But then he realized, just wait for a while. But then he realized that Aunt Polly would pull it out. उसने फिर बाद में क्या सोचा कि Aunt Polly इसे खींचकर निकाल देंगी. आया समझ? Then he remembered something he had heard a doctor once say. फिर उसको कुछ याद आया कि एक डॉक्टर ने एक बार कुछ कहा था. He eagerly took out his sore toe from under the sheet and looked at it carefully. Toe क्या होता है? The big toe of your feet. पैर का अंगूठा. Okay. From under the sheet and looked at it carefully. Now he began to groan. Now he began to cry. उसने अपने पैर का अंगूठा देखा और चिल्लाना रोना शुरू कर दिया. But Sid slept on. Who is Sid? मेरे ख्याल से जिसने भी पिछला पार्ट देखा है सिड के बारे में सब पता हो गया है. टॉम है ना? टॉम वाला पिछला पार्ट देखा है सबने. तो सिड कौन है? उसका कज़न है, कज़न ब्रदर. सिड सोता रहा. वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, बट सिड सोता रहा. The groaning became louder. His crying became louder, but still Sid slept on. फिर से भी टॉम, अभी भी सिड क्या था? वो सोता ही रहा. तो वो कुंभकर्ण का भाई था. आया ना सबको समझ में? सोता रहा. The groaning became louder, but Sid still slept on. It's like a tongue twister. Tom said, Sid, and shook him. उसने जैसे सिड कहा, सिड, और उसको हिलाकर जगाना शुरू किया. shook him. ये शेक का पास्ट फॉर्म है. ठीक है? That worked and Tom began to groan again. That worked मतलब इस बात ने उसका काम कर दिया. सिड जग गया और फिर से टॉम रोने लगा. सिड stretched and sat up and looked at Tom. वो टॉम को देखने लगा. थोड़ा सा उसने अंगड़ाई ली, उठ के बैठा और टॉम को देखने लगा. आगे देखते हैं क्या होता है. ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. इसको मैं बड़ा कर देती हूँ. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. अब चलो. टॉम, ये अभी हम लोग पेज 18 पर ही हैं. किसी को अगर कंफ्यूजन है, अभी हम लोग पेज 18 पर ही हैं. ठीक है? बुक है सबके पास? चलो देखो इसको. टॉम, बोलो टॉम. देयर वॉज नो आंसर. टॉम कुछ बोल ही नहीं रहा. टॉम बोलो क्या हुआ? समझ आ रहा है? हियर. टॉम, व्हाट इज द मैटर? टॉम, क्या हुआ? बात क्या है? एंड shook him, और हिलाने लगा उसे. लुकिंग एट हिम एंशियसली का मीनिंग सब लोग लिखेंगे कॉपी पे. लिखिए. वरीडली, परेशान होकर, चिंतित होकर. आया सबको समझ? एंशियसली मतलब वरीडली. टॉम मोन्ड मीन्स ये सब क्राई का सिनोनिम है. ठीक है? मोन्ड. ओ डोंट शेक मी. मुझे मत हिलाओ सिड. वाई? व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ? टॉम, क्या बात है? टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी. मतलब आंट पॉली को बुलाता हूँ.
No, never mind. Just wait for a while. Okay? Clear everyone? No, never mind. It'll be over by and by maybe. Don't call anybody. नहीं, मत बुलाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, थोड़े समय में ये ठीक हो जाएगा शायद, ठीक है? But I must. Don't groan, Tom. तुम इस तरह मत रो. दहाड़ दहाड़ के रोने को कहते हैं groan. दहाड़ने को कहते हैं groan. ठीक है? It's awful. इस तरह मत रो टॉम. awful मतलब क्या होता है? bad. लिखते जाइए. awful मतलब very bad. How long have you been like this? तुम कितनी देर से ऐसे बैठे हो? कितनी देर से रो रहे हो तुम इस तरह? Hours. ouch. घंटों से. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. This was a lie. झूठ बोल रहा था टॉम. घंटों से मैं ऐसे ही रो रहा हूँ. बहुत दर्द हो रहा है. Getting it everyone? Don't shake me so. हिलाओ मत मुझे. You'll kill me. मार दोगे क्या मुझे? इतना दर्द हो रहा है मुझे और तुम मुझे ऐसे हिला रहे हो. Tom, why didn't you wake me sooner? Now Sid. Sid कह रहा है मुझे जगाया क्यों नहीं तुमने? जल्दी क्यों नहीं जगाया? Sooner. जल्दी और जल्दी जगाते. Tom, what's the matter? हुआ क्या है तुम्हें टॉम? Sid परेशान हो गया. तो ये आ गई हमारी अगली स्लाइड और कुछ भी कहने से पहले मैं इसको ऐसे जूम कर देती हूँ. ठीक, चलो नेक्स्ट. I'll forgive you everything. Sid groan. रोते हुए क्या कह रहा है? I'll forgive you. थोड़ा और जूम कर दूँ, थोड़ा और जूम कर दूँ एवरीवन. लो अब ठीक है, अब ठीक है. चलो. I forgive you everything. Sid groan. Everything you have ever done to me. मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ. Even Sid is not asking for forgiveness. वो तो ये कह ही नहीं रहा कि टॉम मुझे माफ़ कर दो. बट टॉम क्या कह रहा है? जैसे लोगों का एंड समय आता है तो कैसे लोग करते हैं, भूल चूक माफ़ करो, वैसे ही क्या कह रहा है? सिड मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ. एंड एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी. इससे पहले जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ. ठीक है? व्हेन आई एम गॉन. जब मैं चला जाऊँगा. ओ टॉम यू आर इन डाइंग. तुम मर नहीं सकते टॉम. आर यू? क्या तुम मर रहे हो? डोंट टॉम. ओ डोंट. मे बी. मत जाओ टॉम, मत जाओ. डोंट डाई. डोंट डाई. ओके. आई फॉरगिव एवरीबडी. मैं सबको माफ़ करता हूँ. सिड टेल देम. उनको बता देना कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है. सो दिस इज़ ऑल वॉट इट इज़. It's drama. I think it's not seen. It's drama going on. क्या कर रहा है सिड? रो रहा है बेचारा टॉम के लिए. और टॉम क्या कर रहा है? ड्रामा. समझ आया? टॉम एक्टिंग कर रहा है. ठीक है ना? बढ़े आगे. चलो. I forgive everybody and Sid tell them. उनको बता देना. And Sid you give my window sash and my cat with one eye to that new girl and tell her. उस नई लड़की को दे देना. and just tell her. that means जैसे मरने से पहले लोग अपना कहते हैं ना कि मेरा सामान तू इसको दे देना, इसको दे देना. ठीक है? कहते नहीं हैं कि मेरा ये वाला सामान तुम ले लेना. that means will. अपनी इच्छा बताते हैं. वैसे ही टॉम क्या कह रहा था? आई फॉरगिव एवरीबडी. गिव माई विंडो सैश. मेरा विंडो सैश. एंड माई कैट विद वन आई. और मेरा जो कैट है विद वन आई. हाउ कैट विद वन आई इज़ अ टॉय. लेट मी टेल यू. ठीक है? टू दैट न्यू गर्ल. उस नई लड़की को दे देना. एंड टेल हर. उसको बता देना. बट सिड हैड टेकन हिज क्लोथ्स एंड वॉज गॉन. और वो अपने कपड़े लेके चला गया. एंड वॉज गॉन. ही रैन डाउन स्टेयर्स एंड सेड. नीचे जाते हुए दौड़ा और क्या कहा उसने? ओ आंट पॉली कम. जल्दी आइए. टॉम्स डाइंग. टॉम मर रहा है. डाइंग.
जल्दी, यस, डोंट वेट, कम क्विक, जल्दी से जल्दी आप आ जाइए। टॉम्स डाइंग, ठीक है, जैसे लग रहा है कितनी बड़ी बात हो गई है, बट ये सब स्कूल ना जाने का बहाना, एक ड्रामा है, ठीक है। यस, डोंट वेट, कम क्विक, रबिश, आई डोंट बिलीव इट, रबिश, बेवकूफ़, फालतू की बातें कर रहे हो, बेकार बातें मत करो, बेकार की बातें मत करो। बट नेवरदलेस शी रैन अपस्टेयर्स, कुछ भी हो आंट पॉली तो कंसिडरेट थी, टॉम के लिए कंसर्न थी, तो वो दौड़ी हैं ऊपर। बट सिड बिहाइंड हर, और सिड उनके पीछे दौड़ा। वन शी रीच द बेड साइड, जैसे ही वो बेड साइड पे आई, बेड पर, शी क्राइड, यू टॉम, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हुआ है तुम्हें? ओ आंटी, माई सोर टो, माई सोर टो, माई टो इज़ हर्टिंग मी, टो अंगूठा जो होता है, ठीक है, इट्स हर्टिंग मी। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़े, सबको समझ आ गया, इतना सारा समझ में आ गया। हम लोग पेज नंबर 19 पे हैं, जिसको नहीं पता चल रहा है, पेज 19 पे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मैं इसको जूम कर रही हूँ, इस वाली को मैं साइड करके इधर जूम कर रही हूँ, ओके। ओ आंटी, माई सोर टो, द ओल्ड लेडी सैट डाउन ऑन अ चेयर एंड लाफ्ड एंड क्राइड टुगेदर, हंसने भी लगी और रोने भी लगी साथ ही साथ। क्यों? टॉम, व्हाट अ फ्राइट यू गेव मी, ओहो टॉम, कितना डरा दिया था तुमने मुझे, फ्राइट मतलब फियर, कितना बड़ा डर दे दिया था मुझे। नाउ स्टॉप दैट नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ बेड, इतना नॉनसेंस ये सब बंद करो ड्रामा, और बेड से बाहर आओ। द ग्रोन स्टॉप्ड एंड द पेन डिसअपियर्ड, रोना बंद हो गया एंड द पेन डिसअपियर्ड। टॉम फेल्ट फुलिश, टॉम फेल्ट फुलिश, यानी जैसे लगा कि टॉम को ही बेवकूफ़ बना दिया गया हो, ठीक है, ओके। लेट्स मूव अहेड, ओके, yes, it's page 19, it's page 19, चलो। The groans, Aunt Polly, he said, it hurt so much that I forgot my tooth, ये इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा था ये टो मुझे कि मैं अपने टूथ के बारे में, मैं अपने टीथ के, इसके दांत के बारे में तो भूल ही गया। योर टूथ इंडीड, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ? वन ऑफ देम इज़ लूज्ड एंड इट एक्स, एक्स यानी दर्द करता है, इट पेन्स, एक यानी होता है पेन, स्टमक एक, हेड एक, ठीक है। वन ऑफ देम इज़ लूज, ढीला हो गया है, गिरने वाला है, और अब ये पेन कर रहा है, ठीक। गॉट दैट एवरीवन? ओके, नाउ लेट मी क्लियर दिस इंक एंड लेट्स zoom it out. Okay, just wait for a while, just a while. Now see this picture, this is Aunt Polly, okay, and this is Tom on the bedside, that you can clearly see in your book also. The picture is given in your book also, it's given on page number 20, this picture given on page 20. Next we move on to page 21. This is page 21, which I am again going to zoom. I hope it's clearly visible to everyone. Okay, now it would be better visible. Yes everyone, let's start. There now, don't begin to groan again. Now फिर से रोना मत शुरू कर देना. Open your mouth, मुँह खोलो. Well, your tooth is loose, but you are not going to die. Your tooth is loose, दांत ही तो गिरने वाला है, मरने नहीं वाले आप. Get me a silk thread, एक सिल्क का थ्रेड ले आओ, and a chunk of fire from the kitchen, और थोड़ा सा कोयले का टुकड़ा लेके आओ. Tom said, oh please auntie, don't pull it out, it doesn't hurt anymore. नहीं मत निकालिए इसे, दर्द खत्म हो गया, दर्द ओवर, खत्म, अब तो दर्द होना ही नहीं है, ठीक है, अब ये हर्ट नहीं करता, आप मत निकालिए प्लीज़, डोंट आंटी. आई डोंट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। आप समझ रहे हो सिचुएशन, आपने भी किया होगा कभी कभी ऐसा, है ना। चलो नीचे चले, इट्स पेज 21 ओनली,
Just yes. Oh, you don't you? So all this row, ये सारी नौटंकी was because you thought of you could stay at home and go to fishing. अच्छा, तो तुमने सारा ड्रामा इसीलिए किया था क्योंकि तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगी और आज पूरा दिन घर पे तुम रहोगे और फिशिंग के लिए जाओगे, मतलब मस्ती करोगे. टॉम, I love you so and you always try to break my heart. Because I love you, Tom. I trust you and you try to break my heart. तुमने मेरा दिल तोड़ दिया झूठ बोल के. By now the tools were ready. That means chunk of wire, silk thread was ready, and Polly tied one end of the thread to Tom's tooth and the other to the bedpost. Then she took the chunk of wire and thrust it in front of Tom's face. The tooth was dangling from the bedpost. और दांत इसी तरह बाहर आ गया. एक धागे को टॉम के टूथ से बांधा, एक धागे के सिरे को बेडपोस्ट से बांधा, खींचा और दांत एक बार में बाहर आ गया. ठीक, निकल गया. डैंगल मीन्स झूलना. वेट, स्विंगिंग, झूलना, स्विंग, झूलने लगा. ठीक, आया समझ? चले, नीचे तो कुछ नहीं है. नहीं, नेक्स्ट पेज, पेज 22. No, just wait, it's not page 22, it's page 21 only. Okay, next. Again I should zoom it. What do you feel? This is a better way of instead of writing, instead of typing every word of it, is it a better way? Is it a time saver, an energy saver, everyone? ठीक है. Now you will get videos more frequently because of this new method. Okay, so let's begin again. But all troubles have their rewards. हर ट्रबल की एक ना एक उसके बाद रिवॉर्ड होती है. Reward. As Tom made his way to school, he became the envy of all other boys. Envy, बताइए इसका मतलब, जल्दी कौन बताएगा? Envy का मीनिंग होता है ईर्ष्या करना, to become jealous. यहाँ पे he became the envy of all other boys because of the gap in his upper row of teeth. क्योंकि एक teeth उसका निकाल लिया गया था तो उसकी upper row में gap हो गई थी. Presently he met Huckleberry Finn. This is one character in the story. Important character, Huckleberry Finn. One character in the story. Huck was admired by the children and hated their mothers. M-O-T-H-E. Okay. So Huckleberry was, presently he was admired of the children. He admired the children, but he hated their mothers, hated by their mothers. इसका मतलब बाकी बच्चे हक को पसंद करते थे. बच्चे जो चिल्ड्रन थे वो हक को पसंद करते थे. ठीक, लेकिन उनकी मदर्स हक को पसंद नहीं करती थीं. उनकी मदर हक को पसंद नहीं करती थीं. हक didn't have anyone to take care of him. हक के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसका ध्यान रख सके. He did what he liked and didn't have to go to the school or church. उसका जो मन करता था वो मनमौजी था. उसका जो मन करता था वो करता था. उसको कोई ज़रूरी स्कूल या चर्च जाना उसके लिए ज़रूरी नहीं था. ठीक, आई बात समझ में? चलो अब इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Huck was dangling a dead cat. Dangling यानी swinging a dead cat. And Tom was curious. और Tom क्या था? Curious हो गया, उत्सुक हो गया. They got talking. वो दोनों बात करने लगे and planned to meet at the graveyard and see whether the dead cat They planned to meet at the graveyard. Graveyard क्या होता है? कब्रिस्तान सुना है आपने? कब्रिस्तान.
कब्रिस्तान, इसी को कहते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट दैट एवरीवन। तो जो कब्रिस्तान है वहाँ से बहुत सारी हॉरर की और टेरर की स्टोरी सुनाई देती हैं। तो फिर वो लोग मीट करते हैं, वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम मिलेंगे कहाँ पे, कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में, और एंड देखेंगे एंड सी वेदर, और हम लोग देखेंगे कि क्या विद द डेड कैट दे कुड वर्क अ मैजिक ऑन घोस्ट। तो वो लोग ये देखना चाहते थे कि क्या वो उस कैट के थ्रू, उस डेड कैट के थ्रू घोस्ट पर मैजिक कर सकते हैं, भूतों पर मैजिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो ये देखना चाहते थे, ठीक। अब आगे स्टोरी में क्या है, बाय द टाइम ही रीच स्कूल, बाय द टाइम ही रीच स्कूल, आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग दिस फ्रॉम देयर बुक्स, बुक सबकी खुली हुई है, ठीक है। बाय द टाइम दे रीच स्कूल इट वॉज ऑलरेडी लेट हो चुका था। He went briskly. He went in briskly. What does briskly means? Quickly. अपने बुक में आप लिखते जाएंगे quickly. Hung his hat on a peg. Peg is like a एक काटी की तरह, ठीक है, उस पर अपनी हैट हैंग कर दी। And sat down. And they sat down. The master was sleeping and was woken by the noise. So the master, the teacher was sleeping and awoke. और फिर उसके बाद किससे जागा, जो बच्चों की आवाज़ें हो रही थी उससे टीचर जाग गया, टीचर सो रहा था, ठीक है। थॉमस स्वेयर, थॉमस स्वेयर इज़ द फुल नेम ऑफ टॉम। टॉम न्यू दैट व्हेन ही वाज कॉल्ड थॉमस इट मीन्ड ट्रबल्ड। तो जब किसी को आप अपने पूरे नाम से बुलाते हैं दैट मीन्स इट्स ट्रबलसम फॉर हिम। तो टॉम को पता चल गया था कि उसको थॉमस स्वेयर बुलाया गया है टॉम स्वेयर की जगह, तो ज़रूर इसमें कोई प्रॉब्लम उसका वेट कर रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई ना कोई ट्रबल आने वाला है। देखते हैं तो वो ट्रबल क्या है भाई। ओके, सो अगेन आई वुड लव टू जूम इट। वेट, इज दैट फाइन or is this fine now? Okay, sir, yes sir, come up here, यहाँ पे आओ। Now why you are so late again as usual? फिर से तुम लेट क्यों हो गए as usual, जैसे हमेशा होते रहते हो, आज फिर लेट क्यों हुआ? Tom was about to lie, वो झूठ बोलने वाला था। When he saw two long tails of yellow hair and that the only empty place in the class was where the girls were sitting. टॉम झूठ बोलने ही वाला था कि when he saw two long tails of yellow hair and that the only empty place in the class was there the girls were sitting. तभी उसने पीछे देखा कि सिर्फ एक ही एम्प्टी जगह है पूरे क्लास में और वहाँ क्या है, वहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, the girls are sitting, ठीक है। He at once said, उसने एक बार में क्या कह दिया, to talk with Huckleberry Finn. टू टॉक विद हकलबेरी फिन, मैं हकलबेरी से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हकलबेरी, दैट्स वाई आई वॉज लेट। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम, एकदम पिन ड्रॉप, पूरी शांति हो गई। द pupils wondered whether Tom had gone mad. तो बच्चे सोच रहे थे टॉम पागल हो गया है क्या, लगता है टॉम पगला गया है, ठीक है। ओके, आगे। Thomas swear, this is the most absurd excuse I've ever heard. Thomas swear, this is the most absurd, nonsense excuse I've ever heard. इससे पहले तुम्हारे जैसा nonsense excuse किसी ने मुझे नहीं दिया। You need to be whipped. Whipped means, लिख लो, यहाँ पे words difficult हैं, ठीक है। beaten, whipped मतलब तुम्हें लग रहा है मार की सख्त ज़रूरत है, तुम्हें पिटाई की सख्त ज़रूरत है। टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतारो, टेक ऑफ योर जैकेट। द लैशेज फेल्ट ऑन टॉम्स बैक टिल द मास्टर वॉज टायर्ड एंड द मास्टर, लैशेज मीन्स द मास्टर स्टार्टेड बीटिंग टॉम, he started beating Tom until he was completely tired. Next page. Okay.
नाउ गो एंड सिट विद द गर्ल्स एंड लेट दिस बी अ वार्निंग टू यू. अब जाओ, लड़कियों के पास जाके बैठ जाओ. सिट विद द गर्ल्स and this should be a warning to you. This should be the last warning to you. He sat down at the end of the bench and tried to make friends with the girl. He tried to make friends. That means he tried to make friends मतलब friendship करना. He tried being doing friendship with a girl. First he gave her a peach and then tried to draw. एक पीच उसको देता है, फल, और फिर उसके बाद वो ड्रॉ करने की कोशिश करता है. आफ्टर द वाइल द गर्ल बिगेन टू शो सम इंटरेस्ट, और उसके बाद गर्ल को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगता है. ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई मस्ट. ठीक है, और फिर उसके बाद गर्ल को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगता है. उसके बाद क्या होता है देखते हैं. Yes, from here. What's your name? Girl क्या पूछ रही है, तुम्हारा नाम क्या है? Asked Tom. No, this is Tom asking to that girl. Tom asking. Becky Thatcher. The name is Becky Thatcher. Another character, please mark it. Another character in the story, Becky Thatcher. What's yours? तुम्हारा नाम क्या है? Oh, I know. It's Thomas Sawyer. So he's telling his full name, Thomas Sawyer. What's name? That's the name they scold me by. इसी नाम से वो मुझे डांटते हैं. I am Tom when I am good. You call me Tom, will you? तुम मुझे टॉम बुलाना. वो तो मुझे थॉमस के नाम से डांटते हैं, but please call me Tom when I am good. That means when I do not do any mischief, I am Tom. Otherwise, I am Thomas. Will you call me by this name? So she says yes. For the rest of the day, Tom tried to study hard. बहुत मेहनत से पढ़ाई करने की कोशिश करी. But his mind was full of too many things and he made a mess of his lessons. यानी जैसे कि आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा रहता है कि मुझे अभी बाहर जाना है, छुट्टी के बाद मुझे खेलना है, ये करना है, वो करना है, वैसे ही टॉम का दिमाग भी कम्प्लीटली बिजी था. कितना भी पढ़ने की कोशिश करे, आप ही की तरह उसका दिमाग लग नहीं रहा था पढ़ाई में. ठीक है? And this is the end of the chapter. So with this we came to the end of today's lecture, and if you found this video useful for you, please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.